Hi guys, how are you? Welcome or welcome back to my channel. This is Astha. As you've read from the video title itself that this video is going to be about dull, dry, dehydrated skin with dark spots, the skincare recommendations for the same. So one of my followers on Instagram asked recommendations for the same. So I thought I'll make a long sit down video with a lot of information, and all of the products that I have recommended in this video are going to be nail safe because she's just starting out with her skincare. I don't want to overwhelm her skin with fragrances or any irritating ingredient that can harm her skin. So all of the products are first going to be fragrance free, essential oil free, and there will be no denatured alcohol or any kind of short chain alcohol that dries out your skin on the surface of your skin. So if you're interested to know what all recommendations I have made, then please keep on watching. So we'll start with the morning skincare routine. The first step for the morning skincare routine will be usually your cleanser. So I recommend you to use CeraVe Hydrating Cleanser. It's very gentle, it's non-foaming, it will not strip your skin of any natural oils, and जो खिंचा खिंचा सा फील होता है आफ्टर यू वॉश ऑफ योर फेस, एंड वो जो टाइट टाइट फील होता है इस क्लेंजर से फील नहीं होगा आपको बिल्कुल भी. सो इट इज़ अ गुड क्लेंजर टू स्टार्ट विद. वंस यू get used to your skincare routine, once you start moving ahead with your skincare routine, of course you can explore other options as well, but when you have to start, it is better to always start with a light, gentle, hydrating cleansers. And now moving on to the toner. She wanted a lightweight toner, so I have recommended her. I'm sorry, I'm just referring my notes over here. For a light hydrating toner, I'm from Toner, the rice toner. Why? Because it is very lightweight, it is very nourishing, it is hydrating, it will help reduce the dark spots on your face because it has rice water. Also, this is an excellent toner if you want to layer. If you're feeling extra dry, extra dehydrated, you can always add 2 or 3 more layers of this toner. It will just soak up into your skin completely. It will not leave any kind of residue or no oily feeling, but very hydrated and very supple and refreshing feeling it will leave on your skin. Okay, and also just please ignore my swelling over here. I know my face looks a little odd because I have a swelling over here, so just ignore that and just let's focus on the products. Okay, for the serum for the morning, now since she has dark spots, I recommended her to go for Deconstruct 10% vitamin C. The best thing about this product is that it comes in a pump packaging. Since vitamin C is an antioxidant, it should come in a pump packaging. Otherwise उसका फ़ायदा क्या है कि हम ड्रॉपर से लेंगे और कैप के अराउंड एयर होती है, when it comes into contact it just goes bad, you know. वो फोटो सेंसिटिव भी होता है, तो it should have a dark opaque bottle, so it checks all the box. Also, it has 0.5% ferulic acid, which is an excellent anti-inflammatory, which you want with your vitamin C, because vitamin C tingle कर सकता है. Though they have used a very good form of vitamin C, they have used 3-O-ethyl ascorbic acid, which is a stable form of vitamin C and gentle on your skin. Moving forward, she also asked for emulsion. Emulsions are nothing but a gel form of moisturizer, basically a lighter version of a moisturizer. You may need to layer the emulsion twice on your face to get that hydration that you want. So yes, of course you can use it, but I would still suggest to layer it up with a moisturizer, because moisturizer थोड़ा thick होता है, थोड़ा fatty होता है, and since you have a dry skin, so I would always suggest to top it up with a moisturizer. But still, for emulsion, I would suggest to go for Isntree Aloe Soothing Emulsion. It has aloe vera, glycerin, centella, licorice root extract and a bunch of more ingredients that will help to fade away your dark spots. क्योंकि licorice extract बहुत ज़्यादा अच्छा होता है to fade away your dark spots. Centella skin को soothe करेगा, calm करेगा. Then glycerin will add hydration. Aloe vera will also add hydration back into your skin. तो ये बहुत ही अच्छा इमल्शन है because सूट भी करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स पे काम भी करेगा और आपको नरिशिंग और हाइड्रेशन भी देगा. ठीक है, चलो. नाउ मूविंग ऑन टू योर फाइनल स्टेप इन द मॉर्निंग, विच आर सनस्क्रीन. सनस्क्रीन तो अवॉइड आप कर ही नहीं सकते. सनस्क्रीन्स आर अ मस्ट. यू हैव टू अप्लाई इट एवरी डे, इरिस्पेक्टिव बाहर धूप है नहीं है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, इट डज़ नॉट मैटर. यू हैव टू अप्लाई योर सनस्क्रीन 365 days. और after every 2 hours, actually I'm also guilty of not wearing after 2 hours. I'm not reapplying it after every 2 hours, but you should. And for the sunscreen, I would recommend, if you're comfortable with chemical sunscreen जो होता है वो आपके blood stream में enter करती है, physical sunscreen enter नहीं करती है.
बट स्टिल केमिकल सनस्क्रीन का फ़ायदा ये है दैट इट ब्लेंड्स वेरी इजीली ऑन योर स्किन, ठीक है, और कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती. अब तो फिजिकल सनस्क्रीन्स भी अच्छी आ गई हैं जो वाइट कास्ट नहीं छोड़ती, बट स्टिल आई ऑल्सो समटाइम्स प्रेफर केमिकल सनस्क्रीन क्योंकि दे आर वेरी ईजी, वेरी लाइट वेट एंड दे आर हाइड्रेटिंग ऑल्सो, ठीक है. फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू 1% hyaluronic सनस्क्रीन फ्रॉम बाय डर्माको. अमेजिंग जेल सनस्क्रीन है, जेल क्रेम सनस्क्रीन है एंड इट हैज़ SPF of 50 विथ PA4+. PA4+ का मतलब हो गया कि ये आपको एजिंग से भी बचाएगी. जो आपका SPF होता है दैट इज़ फॉर योर UVB और जो आपका PA+ होता है दैट इज़ फॉर योर UVA एजिंग के लिए. सबसे अच्छी बात यह है दैट इट डज नॉट स्टिंग माई आइज. आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द पास्ट 2 years एंड इट डज नॉट स्टिंग माई आइज एट ऑल. दिस इज़ वन ऑफ माई टॉप फेवरेट सनस्क्रीन दैट आई यूज़. For the mineral sunscreen, Dr. Sheth's की mineral sunscreen है that has SPF 50 and it has PA3+. It has 25% जिंक ऑक्साइड और ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है. जिंक ऑक्साइड ये आपकी स्किन को काम करता है, ठंडा रखता है क्योंकि ये जिंक इज़ बेसिकली चॉक, तो ये बहुत ठंडा रखता है स्किन को. तो इट इज़ फॉर्मुलेटेड विद 25% ऑफ द जिंक ऑक्साइड, सो इट्स अ वेरी गुड मिनरल सनस्क्रीन. यू कैन ट्राई दिस आउट इफ़ यू वांट समथिंग tinted. In the mineral sunscreen, I have always used Recool की sheer zinc tinted sunscreen which has SPF 50 and PA3+. This is an amazing mineral sunscreen and it has a slightly orange tint and that color corrects your dark spots at the same time. So I really like to use this when I don't want to wear any BB or CC cream. I just use this sunscreen on top of my chemical sunscreen and I'm good to go because this is silicone based. You can directly apply your makeup and on top of your Recool sunscreen, so it works very good as a base layer. Starting with your evening routine, double cleansing is a must. Double cleansing तो रोज़ करनी है because even if you're not wearing your sunscreen, which you should actually, throughout the day your skin is getting assaulted by the external environmental factors जैसे pollution हो गया, oil है, dirt है जो आपके face पे बिल्कुल चिपक जाता है. You need to clean it off with a cleanser and double cleansing is the best way to do it. If you prefer oil cleanser, I would highly suggest to go for Beauty of Joswa. It is very soothing, very calming. It does its job. Makeup भी remove करता है, sunscreen भी remove करता है. If there is any oil, dirt, grime on your face, उसको अच्छे से साफ करता है. And the best part is it does not leave any oil residue on your face. Okay, अगर आपको ऑयल क्लेंजर नहीं पसंद, अगर आपको क्लेंजिंग बाम पसंद है, I would suggest to go for the Deconstruct 0.1% Bisabolol and 1% oat oil cleansing balm. क्यों? क्योंकि इट कम्स इन अ ट्यूब पैकेजिंग. इट इज़ वेरी हाइजीनिक. यू आर नॉट गोइंग टू आपको यू डोंट हैव टू डिग इन योर फिंगर एंड टेक ऑफ द प्रोडक्ट एंड वो अनहाइजीनिक है. इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक. यू वांट टू गो फॉर द पैकेजिंग दैट इज़ वेरी हाइजीनिक. यू डोंट वांट योर फिंगर्स, योर हैंड्स टू टच योर प्रोडक्ट बिफोर अप्लाइंग इट. और इसकी सबसे अच्छी बात है इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, इट्स वेरी लाइट वेट एंड इट डज द जॉब. इट क्लेंसेज योर मेकअप effectively and it's very soothing also because it has oat oil and bisabolol is also very soothing on the skin. So if you want cleansing balm and not an oil, then you can go for this one. Okay, for the second cleanser, I would suggest you to go for the foaming simple refreshing facial wash. It's a very simple no nonsense facial wash because ये फोम करेगा. वो जो आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मेरे को झाग वाला फेस वॉश यूज़ करना है, तो ये आपका वो भी सेटिस्फाई करेगा. एंड इट इज़ नॉन स्ट्रिपिंग एंड इट हैज़ नो अदर इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट फॉर व्हाट इज सपोज टू डू. उसको सिर्फ आपको फेस धोना है, आपको फेस क्लीन करना है, आपको सर्फेक्टेंट चाहिए. इसमें सिंपल जेंटल सर्फेक्टेंट्स हैं एंड देयर इज़ नथिंग एल्स इन इट दैट कैन इरिटेट योर स्किन. एंड बिकॉज यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, आई विल ऑलवेज से टू स्टार्ट विद दिस क्लेंजर. चाहे आपकी कोई भी स्किन हो, कोई भी स्किन टाइप हो, एनीवन एंड एवरीवन कैन यूज़ दिस क्योंकि ये नॉन ड्राइंग है और इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी नहीं. आफ्टर यू डन विद योर डबल क्लेंजिंग, व्हेन योर स्किन इज स्टिल डैम्प, then you are supposed to apply toner. I would just say कि just repeat from the morning. It is Korean product और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है एंड यू नीड लिटिल, थोड़ा सा ही चाहिए होता है आपको. आई थिंक 4-5 ड्रॉप्स में आपका काम हो जाएगा एक बारी में एंड दिस विल लास्ट यू रियली लॉन्ग, मोर देन 6 months. If you do it both morning and evening, still it will last you for 6 months. So I think it's a good investment.
and you can also apply 2 or 3 layers like I said before of this toner if you feel very dry, very dehydrated. आपकी स्किन हर दिन अलग तरह फील करती है. एक दिन वो ड्राई फील करेगी, एक दिन वो एक्स्ट्रा ड्राई फील करेगी, एक दिन नॉर्मल फील करेगी, एक दिन आपको लगेगा यार आज ऑयली लग रहा है. तो यू कैन ऑलवेज क्लब और कंबाइन और सी कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं तो मैं इसको कैसे अपनी स्किन के लिए इस टाइम उसको वर्कआउट कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास फैटी मॉइस्चराइज़र नहीं है, आप अपने टोनर की 2 या 3 लेयर्स लगा लो. तो आई थिंक यू कैन वर्क अराउंड योर प्रोडक्ट्स इफ़ यू नो हाउ टू डू इट. सो दैट्स इट फॉर द टोनर. सीरम का बहुत लंबा चैप्टर बन जाएगा क्योंकि बहुत तरह के सीरम आते हैं, ठीक है. बट जो 2 मेन सीरम होते हैं हमारी स्किन के लिए वो है आपका एक रेटिनॉल और वो है आपका एक केमिकल एक्सफोलिएशन. और दैट इज़ वेयर द स्किन साइक्लिंग कम्स इन प्ले. अब स्किन साइक्लिंग क्या होता है? स्किन साइक्लिंग हो गया कि मैंने आज सिर्फ हाइड्रेशन करी है, इवनिंग में सिर्फ हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं, नेक्स्ट भी मैंने हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं, नेक्स्ट उसके अगले दिन थर्ड डे सपोज वेंसडे को आई विल गो फॉर द केमिकल एक्सफोलिएशन, देन फॉर 2 days अगेन आई विल गो फॉर द रिकवरी. आई जस्ट यूज हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी एक्टिव. एंड फॉर द 5th day or 6th day आई विल गो विद रेटिनॉल and then again I'll go to the recovery. So you have to do your skin cycling. आपको अपनी स्किन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केमिकल एक्सफोलिएशन लगाना है, उसके बाद स्किन को रेस्ट देना है, उसके बाद आपको रेटिनॉल लगाना है. दीज आर द 2 मेन serums that you require at this stage. Of course when you start learning how to take care of your skin and when you start learning कि मैं इसके साथ क्या पेयर कर सकते हैं, क्या क्लब कर सकते हैं, कौन सा एक्टिव किस एक्टिव्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, then of course you can buy more and go ahead. Once you start enjoying your skincare, when you know there's a time when you just start enjoying that skincare ritual, when you enjoy that 20-30 minutes that you get in your washroom all alone without your kids. So you just start enjoying that time and then you can really dig into and savor everything that you have on the platter. मुझे पता है खाने जैसी बात लग रही है, बट दैट इज़ व्हाट स्किन केयर डज टू मी. आपको पता लग जाएगा कि क्या कॉम्बिनेशंस हैं, क्या आपकी स्किन के लिए कॉम्बिनेशंस हैं. तो वंस यू लर्न ऑल दोज, ऐड मोर, बट प्राइमरीली व्हाट यू नीड इज़ हाइड्रेटिंग सीरम. और अगर आपके पास सीरम हाइड्रेटिंग नहीं है, आजकल सीरम जो आपकी एसेंस है या जो आपके मॉइस्चराइजर्स हैं उन्हीं में हाइलुरोनिक एसिड भी होता है, उन्हीं में आपको पैंथेनॉल, एलेंटॉइन और ग्लिसरीन, ये सारे नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको मॉइस्चराइज़र में ही मिल जाते हैं. सो यू डोंट नीड अ नरिशिंग सीरम सेपरेटली, ठीक है. तो प्राइमरीली इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड रेटिनॉल एंड अ गुड एक्सफोलिएटर. ओके, अब हम आते हैं केमिकल एक्सफोलिएटर के ऊपर. केमिकल एक्सफोलिएटर बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं, AHAs, BHAs, PHAs, आई नो, और उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं. दे आर वेरी ओवरवेलमिंग इफ़ यू डोंट नो दैम. आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट सो दैट यू कैन चूज बेटर फॉर योर ओन स्किन टाइप. जैसे फॉर मी AHAs वर्क बेटर देन BHA. BHA मुझे चाहिए होता है जब भी मुझे यहाँ पे हल्के हल्के ब्लैक हेड्स आ जाते हैं या मुझे लगता है कि यहाँ पे स्किन मेरी क्लॉग हो गई है, यहाँ पे मुझे ड्राई पैचेस होने शुरू हो जाते हैं. दैट्स व्हेन आई यूज़ द BHA. या जब मुझे जिट्स आने शुरू हो जाते हैं, आई गेट जिट्स ओवर हियर, यहाँ पे आ जाता है या यहाँ पे आ जाता है, आई यूज स्पॉट करेक्टिंग BHA. और जनरली अगर मुझे अपने फेस के लिए चाहिए, बिकॉज आई एम अ ड्राई स्किन, आई ऑलवेज गो फॉर द AHA. सो आई ट्राई एंड मेक a separate video for the chemical exfoliator. We'll just move on to the product that I suggested her for the dull, dry, dehydrated skin with dark spots. So I suggested her Dermaco X Dr. V ABH exfoliator serum. Never use physical scrub. Always go for a gentle केमिकल एक्सफोलिएशन. करेक्ट परसेंटेज में होना चाहिए. ओवर ज़्यादा परसेंटेज में लोगे तो वो चांसेस हैं कि आपकी स्किन बर्न कर दे, और अगर स्किन बर्न हो गई तो हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है. आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो आप उसको वर्सन अप ही कर दोगे. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट स्लो, टेक द परसेंटेज दैट इज़ रिकमेंडेड. और इसमें दिस प्रोडक्ट हैज़ एवरीथिंग इन द राइट क्वांटिटी एंड इन द राइट proportion. So try this one out. I'm very sure this will suit all of you. And if you want to know more about how to use your chemical exfoliator, I've already made a video and I think Insta पे है या YouTube पे है. मैं link कर दूँगी अगर Insta पे है तो, या I'll put it in the description box below of how I use my chemical exfoliator. I think YouTube पे है, I'll link it down below. एंड फॉर द रेटिनॉल इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम रेंज. रेटिनॉल भी इसी रेंज में है. डॉक्टर V X Dermaco से ही है इसका रेटिनॉल सिरम. इट्स अ वेरी वेरी नाइस रेटिनॉल सिरम.
और ये कोई इरिटेशन नहीं देता, आपको सिर्फ एक पंप चाहिए, वो पंप पैकेजिंग में है। आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो फॉर इट, और वो वीडियो मेरी इंस्टाग्राम पे है। आई विल पुट माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो डाउन बिलो, सो यू कैन चेक माई वीडियो ओवर देयर। अगर हम बात करें रेटिनॉल की, रेटिनॉल इज़ वेरी ट्रिकी टू यूज़। अगर आप बिगनर हो एंड वो आपको बहुत जल्दी इरिटेशन दे सकता है, बिकॉज इट्स अ ड्राइंग अल्कोहल एंड बट स्टिल इट इंक्रीजेज योर सेल टर्नओवर। वो कोलेजन प्रोडक्शन इंप्रूव करता है आपकी, और आपकी स्किन थोड़ी यूथफुल लगती है, और आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं उस पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। बट देयर इज़ अ वे टू यूज़ इट। जैसे आपने अपना डबल क्लेंजिंग किया, आपने टोनर लगाया, यू कैन अप्लाई 2 layers ऑफ टोनर टू मिनिमाइज स्किन इरिटेशन। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा लो। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जब मॉइस्चराइज़र अच्छे से वो सोकअप हो जाए, बिकॉज रेटिनॉल आपको बिल्कुल ड्राई स्किन पे लगाना है, डैम्प स्किन पे नहीं लगाना। जब मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में अच्छे से ड्राई हो जाए 10 मिनट के बाद, आप अपना रेटिनॉल लगाओ। जब रेटिनॉल अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आप दोबारा मॉइस्चराइज़र लगाओ। और मॉइस्चराइज़र आपको ड्राई स्किन पे नहीं लगाना। तो आपको जब रेटिनॉल अच्छे से ड्राई हो जाए, 10-15 मिनट हो जाए, उसके बाद डैम्प योर स्किन विद योर टोनर अगेन, और जस्ट स्प्रे सम वाटर और स्प्रे सम रोज़ वाटर, और उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यू कैन सील इट ऑफ विद अ ब्यूटी ऑयल, स्क्वालिन ऑयल हो गया या फिर रोज़हिप ऑयल हो गया, वट एवर ऑयल सूट्स यू एज पर योर स्किन टाइप। मैं सिंपल स्क्वालिन ऑयल यूज़ करती हूँ, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। जैसे हमारा नेचुरल स्किन ऑयल है उसको मिमिक करता है स्क्वालिन ऑयल। एंड या यू आर गुड टू गो नाउ। ये आपकी इवनिंग स्किन केयर डन हो गई है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज यू कैन जस्ट गो विद द स्किन साइक्लिंग एज ए सजेस्टेड। आप सिर्फ डबल क्लेंस करो, मॉइस्चराइज करो, एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। सिर्फ आपको 2 दिन ही मेहनत करनी पड़ेगी अपनी स्किन के लिए, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट इन योर स्किन केयर। बिना कंसिस्टेंसी के आप सोचो मैं 4 प्रोडक्ट 4 दिन लगा लूँ, मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, ऐसे नहीं होएगी। इट विल टेक टाइम। I have been doing skincare religiously for the past 4 years, and that's how I've reached here with my skin. It will take time. आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना आपको देना पड़ेगा अपनी स्किन के लिए for the products to work on your skin. It takes time. So yeah, that is it. I hope this video was helpful to all of you out there, and soon I'll be making another video for oily skin, so do check that out as well. Till then, bye.